So, Sanjay ji, welcome to London. How are you? Thank you. Very good and enjoying every minute over here. It's so nice to be sat here in front of you. And when I got this opportunity, I was so excited because I was actually literally saying a few weeks ago, and I was watching the film back, that you are actually one of my favorite directors, and it would be an absolute honor to even meet you, let alone work with you. So I would have loved for me to be your only favorite, not one of the no, favorites. you are the favorite. You are the because I'm joking. No, do you know why I say you're the favorite? Because everything about me is, anyone who knows me will tell you, sir, I'm very loud, very vibrant, very colourful. I like to take a risk. I like creativity. So anytime I watch one of your films, I'm transported into a whole new world. Yeah. So I've just had the privilege of listening to some of your songs from Sukoon. और मुझे इतना सुकून मिला वो गाने सुन के. And when they stopped the song, मैं थोड़ा रो ली. आपने क्यों बंद कर दिया? What a beautiful, beautiful album. Yes, it is a labor of love. When I say labor of love, true labor of love. In the लॉकडाउन के वक्त में मुझे लगा कि क्या करें, क्रिएटिविटी तो हो नहीं सकती. Yeah. गंगूबा की आधी शूटिंग हो चुकी थी और फिर हम अटक गए तो सेट खड़ा था फिल्म सिटी में और बेचैनी थी बहुत कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों में सफरिंग इतना, लेकिन घर पे बैठना तो क्या करेंगे. तो मैंने पहले 2 महीने तो आई जस्ट शिफ्टेड माई फर्नीचर अराउंड इन हाउस टू जस्ट टू आर्ट डायरेक्शन एंड क्रिएटिविटी इन माई माइंड, रोट थिंग्स इन माई, बट आई गॉट टायर्ड. आई सेड नो लेट मी डू म्यूजिक. That which I live on and survive on, I cannot live without music. Yes. I need music non-stop 24/7. Right now also in the bedroom the music is going on because I cannot live without it. So it was very important that I got down and said, I called my lyricist and said, तो राज भाई आपके पास कुछ है क्या इंटरेस्टिंग, कोई गज़ल कोई शेर. बोले गज़ल क्यों बनाएंगे आप, आजकल कौन सुनता है गज़ल. मैंने कहा आजकल का डिसीजन आप लेंगे कि मैं लूँगा. Very nice. हम लोग कहेंगे कि उनको सुनना है कि नहीं. हमारा काम है बनाना. Let's reach it. Who knows, the young generation might just lap up the whole thought of ghazal coming back and Geet coming back, and we are tired of only Punjabi pop or only Hindi film music or only Gujarati dandiyas. We're tired of it all. कुछ नया चाहिए. कुछ नया चाहिए. So I thought let's try something. Something might. So it is one of those 2 years of labor of love sitting in through hours and hours and hours. दिल से बनाए गाने हमने. And जब वो गाने सुनते हैं ना, you can hear कि this is come from within your soul. Yeah. And it's true what you're saying कि आजकल ये perception हो गया है कि गज़ल आज की generation कौन सुनता है. But as a radio presenter, as an RJ in London, मैं जब भी जगजीत जी का कोई भी गाना बजाती हूँ, I have a flood of messages. मैं पंकज उदास का कोई भी गाना बजा दो, अरे वाह रेडियो वाली क्या गाना बजा दिया. Because audience appreciate it, क्योंकि आजकल वो सुनने को मिलता नहीं है. एंड आपने जो कुछ गानों के साथ छेड़छाड़ी की है, वो तबले के साथ, वायलिन के साथ, श्रेया जी की आवाज़ के साथ, अरमान के साथ, it's just phenomenal. So you've never worked with Arman, am I correct? No, the first time I worked with Arman. I wanted to take this form of music and take younger generation, not to make the slightly older generation of the senior singers to use it. Ghazal should be young. I mean, Yes. हम लोग बहुत taken for granted करते हैं कि youngsters को ये पसंद नहीं. Youngsters are very talented. Yes. They are very open to new films, new ideas, new stories. Yes. गंगूबाई को लैप अप किया. कई लोगों ने मुझे कहा था कि गंगूबाई मत बनाइए, ये सेक्स वर्कर की कहानी, हीरोइन ओरिएंटेड, डार्क सब्जेक्ट, लोग नहीं देखेंगे, आएंगे ही नहीं. बिल्कुल गलत. यंगस्टर्स वेंट एंड फ्लडेड द बॉक्स ऑफिस वाज ह्यूज. तो हमने कहा कि भैया आप तो लोगों पे खामोगा ये इल्जाम लगा रहे हो. ये इल्जाम मत लगाइए. हमारा काम है टू गिव पीपल समथिंग, एंड इफ दे लव इट देयर इज समथिंग राइट अबाउट इट, एंड इफ दे डू नॉट लव इट देन देयर इज समथिंग अमिस अबाउट इट. Yes. एन आर्टिस्ट कीप्स ग्रोइंग. ऑडियंस तो माई बाप होती है एट द एंड ऑफ इट. फिल्म हो या गाने हो या जो भी हो. तो आई वॉन्टेड यंगर जनरेशन सिंगर्स, पेपॉन, अरमान मलिक, श्रेया, मधुवंती, प्रतिभा जो बहुत अच्छे गज़ल भी आजकल गा रही है. Yes. तो प्रतिभा, शैल, तो इन सब लोगों को यंगर जनरेशन को लेके मैंने कहा उनके तक उतनी काम पहुंचाओ जो उनको कंफर्टेबल लगे. हाँ. इतना भी बॉक डाउन मत करो. तो गालिब साहब की गज़ल हमने रखी है हर एक बात. एक मोमिन साहब का है ये जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, तो वो फिर तुराज भाई की है. तो बहुत इंटरेस्टिंग. इतना करेंगे. फिर हो सकता है कि इफ दिस वन वर्क्स आई विल कम आउट विद अनदर एल्बम व्हिच इज अ लिटिल मोर विदाउट कॉम्प्रोमाइज भी सारे बड़े गज़ल वाले लिखने वाले शायरों की गज़लें करेंगे, देखेंगे.
सो हाउ डू यू फील संजय जी कि आप अपनी ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कैसे करते हो? आप अपना काम करें, वो कनेक्ट अपने आप बनता है। मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ करके मैं काम करूँगा। मैं एक एजेंडा से कि मेरी फिल्म हिट होनी चाहिए तो मैं काम करूँगा, या मेरा गाना बहुत हर जगह पे बजना चाहिए इसलिए मैं, आप बनाइए। मुझे जब बनाना था मल्हारी बाजीराव मस्तानी के लिए Yes. या खली बली, तो बनाया, मतलब जो दिल में आया वो बनाया, तत्ड़ तत्ड़। वो कितना चलेगा क्या चलेगा वो नहीं, मैंने कुछ नया पेश किया। फिर हमने बहुत मस्ती और मज़े से शूट किए, रणवीर ने एकदम दिल लगा के तीनों गाने किए Yes. और लोगों तक पहुंचे। तो लोगों तक पहुंचने के लिए आपकी ईमानदारी काम की, योर ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, योर लव फॉर योर वर्क एंड योर लव for the respect you give your audience for giving them something new, वहाँ से कनेक्ट बनता है कि क्या बनाया आपने। अब मेरी ओवर द ईयर्स खामोशी से आस्ते आस्ते मेरी एक ऑडियंस बनती गई। वो ऑडियंस को कि आप लगातार मेहनत कर रहे हो, आप लगातार लोगों तक अपनी नई बात पहुंचा रहे हो, आप लगातार उनको कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी ऑडियंस बनती गई, कारवां बनता गया और फिर आपका कनेक्ट अपने आप बनता है। मुझे लगता है कि अब मेरा काम लोगों तक आसानी से पहुंचता है। हालांकि लोग कहते हैं कि आप मैजिकल रियलिज्म वाली होती है आपकी फिल्में, बहुत रियलिटी में रूटेड नहीं होती है, एक आप अपने ख्याली में दुनिया में बनाते पेश करते फिल्म, या ये है या वो है, पर देखो भैया लेकिन इसमें गलत क्या है? आज थाईलैंड में मुझे कल हमारी फिल्म में जो एक्ट्रेस है सीमा पावा, जिन्होंने ब्रॉथल मैडम का रोल Yes. किया गंगूबाई में, तो वो थाईलैंड में थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा, वहाँ की लड़कियाँ ढोलीडा डांस कर रही है वही सफ़ेद साड़ी पहन के कल। तो ये प्यार जो दुनिया में मिलता है, ये जो आपका काम पहुँचता है, अब वो कहते कि यहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा वीडियो भेजा 2 मिनट के बाद, अभी ये लोग डोला कर रहे हैं, and these are stage shows. These are stage shows. And I was like, सीमा जी इतना प्यार, बोले सोचो एक आर्टिस्ट को इतना प्यार मिले, इससे ज़्यादा क्या चाहिए उनको। तो ये कनेक्ट यहाँ से दिल से गाना बनाइए, दिल से फिल्म बनाइए, और कोई फल की इच्छा मत रखे करते हो, बस बनाइए, बस खुश होके एकदम। वे वापस आप वो गाना कभी बनाओगे नहीं, वापस वो फिल्म बनाओगे नहीं, बनाओ ऐसे बनाओगे लोगों तक पहुँचे, पहुँचती है। आपकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया फिर से एक और बार, बिकॉज आई थिंक ये बहुत आपने सही बात बोली कि आप अपना काम करो, आप अपने दिल के साथ ईमानदारी से वो काम करो, लोगों तक पहुंच जाएगा। इवन जब मैं अपने शोज़ पे रिस्की गाने बजाती हूँ, या फिर मेरा ऑडियंस यंग ऑडियंस है, लेकिन मैं 70s या 60s का गाना बजाती हूँ, परदेसिया बजाती हूँ, लोग पसंद करते हैं क्योंकि दे कैन रिलेट टू इट। एंड आजकल रीमिक्स का ज़माना चल रहा है, सो ऑब्वियसली आपने नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से वो रीमिक्स का गाना, बिकॉज दे वांट टू रिविजिट दोज ओल्ड सॉन्ग्स। तो कहते हैं अरे बार बार थोड़ा बीट डाल के रीमिक्स करके कर लिया। पर आप जब प्योर ओरिजिनल गाना बजाते हो तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है शीना, यही कि अच्छा म्यूजिक, अच्छी फिल्म कभी डेटेड नहीं होती है। Yes. वो आज भी बजाओ, उसको रीइंटरप्रेट करो। देखो बरुआ साहब ने बनाई देवदास, फिर बिमल रॉय ने बनाई 20 साल के बाद, फिर मैंने 30 साल के बाद अपनी देवदास बनाई। तो वही अच्छी चीज़, एक अच्छी कहानी बनती गई। अब आप मेरा वर्जन को देवदास का रीमिक्स बना बोल सकते हो कि आपका तो रीमिक्स वर्जन था देवदास जो फिर बनाई। बट yes, the remix is very important, and what is good about remixes is that keeps the old songs and old melodies in fashion, alive and in fashion, and you realize that the old melodies and those never die. तो आपको लगता है कभी कोई दूसरा रीमिक्स या 2.0 वर्जन बन सकता है संजय लीला बंसाली का? और बना भी देंगे तो रोक थोड़ी पाऊंगा भाई मैं। बनाए खुश रहे, बना काम बनाए इसलिए कि आप अपनी तरह से उस पर नाचो गाओ, अपना खुद कभी रीमिक्स वर्जन बनाओ, उसकी फिल्म बनाओ, उसका जो भी करो। दैट्स द आइडिया ऑफ गिविंग वर्क टू द ऑडियंस एंड सेइंग प्लीज एंजॉय इट, प्लीज रीइंटरप्रेट इट, प्लीज फाइंड समथिंग फॉर योरसेल्फ विद इन इट। हो सकता है वो रीमिक्स वर्जन मुझे इंस्पायर कर जाए। Yes, very true. And we were talking, आपने अभी गंगूबाई की बात की, it was a film जो I'm sure लोगों ने आपको बोला होगा कि मत करो ये, because when we think of a typical Sanjay Leela Bhansali film, we think color, we think creativity, we think love, romance, और ये सबसे दूर था। लेकिन फिर भी कोई भी फिल्म के 3 मिनट के अंदर बोल देगा हाँ ये संजय जी का काम है। So how did you keep your
yourself within that film in such a dark storyline? देखिए इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम्स, म्यूज़िक, ये सब थोड़ा अलग था बाकी फिल्मों से। कलर स्कीम खास करके वाइट साड़ी, बाकी हीरोइनों ने सब रंग हाँ। आलिया पहले बहुत नाराज़ थी कि मैं तो आपके साथ इसलिए काम करना चाहती हूँ कि मुझे वो रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम पहनने, बड़े बड़े डांस सीक्वेंस करने। मैंने कहा ये तू यादगार रहेगी, तू ये वाइट साड़ी में कर ले ये रोल, ये तेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सुकून में गाने कितने हैं? 10 गाने हैं। ओके, आपका पर्सनल कोई फेवरेट? सारे सब सुनता हूँ हर रोज लगा हाँ, मैं वही बोल रही थी कि मैं उसको चोरी करके अभी ले जाऊँ 2 गाने। रोज मैं लगा के उसको हेडफोन पे सुनता हूँ। अरमान का था ना, वो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने अभी 3 ही सुने हैं। तो अरमान का जो गाना है, एंड अरमान एक्चुअली आया था लंदन, ही वाज इन आवर स्टूडियोज कुछ एक महीना पहले। उसकी आवाज़ में कुछ एक जादू तो है, बिल्कुल एक खनक है उसकी आवाज़ में। यंग है, टैलेंटेड है, और जो लगता था कि ये नॉर्मली इसी किस्म के गाने गाते हैं यंगस्टर्स के और यंगर म्यूजिक डायरेक्टर्स के, और अचानक आई टुक हिम टू सम अदर जॉनर ऑफ इट। Yes. और सेमी क्लासिकल में उसको गाया तो वो इतना खुश हो गया कि मैंने तो ऐसा गाना गाया ही नहीं पहले, तो मैंने तो ये तो मेरे लिए बहुत नया है। और उसने जान लगा दी उसको गाने के लिए, 2 बार आया, 2 बार गाया उसने। Wonderful kid, beautiful talent. Why Arman and not someone like Arijit Singh who has sung similar I numbers? thought Arman was here. Arijit was not here during the lockdown, and I thought Arman क्यों नहीं? हम Yes. लोग देखो, एक आर्टिस्ट को fearless होना बहुत जरूरी है। Yes. In the taste of what the story that I pick up to make a film, in the way I will treat the film, कि गंगूबाई मैंने एकदम अलग ट्रीटमेंट बना दी। फियर रहो आर्टिस्ट में, आप अपने शो पे जो आपके दिल में आता है वो बजाइए। Yes. कभी फेल होगी, कभी पास होगी, कभी सक्सेसफुल होगी, कभी बहुत मैसेजेस आएंगे शाबाशी के, कभी गालियाँ मिलेगी, तो ठीक है। फियरलेस रहना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट का काम ऐसा होता है कि कभी आपने कुछ जो भी किया उसका फिर लोग तो रिएक्ट करने वाले हैं, तो आपको रिएक्शन से डरना नहीं चाहिए। या तो उससे कुछ सीखो, या तो लगे कि हाँ मैंने गलती की, ये बात तो पते की है। तो आई फील fearless, being fearless is very important, and therefore to be adventurous is very important. Yes. So I said I want Arman to sing the song, I want Pratibha to sing that song, but I cannot do without Shreya, because Shreya and me are inseparable part of You are. music and films, and she अधूरा लगता है ना श्रेया के बिना। श्रेया नहीं होती है तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, बिकॉज वो मुझे समझती है, मुझे बहुत इज्जत देती है, मुझे बहुत प्यार देती है, और आई रिस्पेक्ट हर, आई लव हर अ लॉट। और हम लोगों का इक्वेशन बिल्कुल ओवर द लास्ट 20 years that I know her, 22 years that I know her, hasn't changed one bit. सो वही किस्म तरीके से आके बैठ के म्यूजिक सिटिंग में गाने गाना, वो गाना जो हमने 5 साल पहले रिकॉर्ड किया था बट आज तक रिलीज नहीं हुआ, उसकी बातें छेड़ना, फिर वो गाना आपने सुना था लेकिन आपने रिकॉर्ड तक नहीं किया, तो लोग बैठ के गाती है। तो वो बहुत सुंदर रिलेशनशिप है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक फूल की तरह है जो खिलता जा रहा है, खिलता जा रहा है। इसमें कोई ईगो आया है अभी तक, हाँ। ना कोई इसमें अंदर कोई एरोगेंस है कि मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ और पूरे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी महान गायिका हूँ, कोई चीज़। Yeah, she's been compared to Lata ji and been called a Nightingale level 2. Yeah, but at the end of it, yeah, it's after Lata ji, if there's anybody who can fill in that space, it is Shreya Ghoshal for sure. So great equation work with, so I can't do without her. फिर पैपॉन और ये सब बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, राशिद खान साहब से गवाया मैंने एक गाना। आपने राशिद भाई का गाना सुना कि नहीं, वो नहीं सुना है। वो सुनना चाहिए। राशिद भाई ने पहले कभी गजल नहीं गाई है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को ये क्या दे रहे हैं, तो मैंने कहा आप सुनिए, आपको अच्छा लगे तो गाइए। तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले मुझे आपकी म्यूज़िक की सोच अच्छी लगती है और ये। मैंने कहा देखिए तो फिर कैसे गाऊँ, मैंने कहा देखिए आप रशीद खान साहब हैं, आपको उस्ताद रशीद खान साहब कहते हैं, आप जो म्यूज़िक समझते हैं और जानते हैं और गुन गाते वो हम थोड़ी समझ सकते हैं, तो आपको ये गाना भेजा, आप अपने तरीके से उसको गा लीजिए। और उन्होंने इतना ज़बरदस्त गाया। व्हाट अ सिंगर ही इज़, एन टेरिफिक टैलेंट। So you've had काफ़ी बड़ी जर्नी हुई आपकी in the last 6 months, 7 months, you know, from the starting of Gangubai, Sukoon was happening in the background, आपके साथ वो भी हो रहा था। तो इन सब चीज़ों के होने के बाद, you know, you had the world premiere in Berlin, फिर रिव्यूज़ आई, 5 तारे पे तारे मिलते गए, एंड इतना प्यार मिला है, स्टैंडिंग ओवेशंस मिला है। मैं खुद सिनेमा में जाके खड़ी होकर ताली बजाई थी बिकॉज आई वाज दैट मूव्ड बाय द फिल्म। आपने सुकून की चैन की सांस कब ली? चैन की सांस जिंदगी में जीती तो कोई ले सकता है भाई। हम लोग से अपने आप को हम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई हमने सुकून की सांस ले ली। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव एंड एज लॉन्ग एज देयर इज वर्क एंड देयर इज स्ट्रेस एंड देयर इज दिस एंड देयर इज दैट एंड यू कीप फाइटिंग इट एंड यू कीप ओवरकमिंग इट, तो एवरी लिटिल challenge in a day that you overcome and you pass by, you take
सुकून की सांस। तो ऐसा कोई है नहीं कि हाँ रिलीज़ हुई सब हो गया अभी मैं सुकून की सांस लेके बैठा हूँ, नहीं। अच्छा मेरी एल्बम ख़त्म हो गई, सुकून मैंने बनाई, और सुकून 2 साल 1 साल तो मैंने खाली मिक्सिंग किया है। Wow. वो रिकॉर्डिस्ट पागल हो गया, बोला कि आप कितना मिक्सिंग कराते आप ये। मैंने कहा नहीं, हर गाने को इतना दर्जा दो कि ये इसको वो, क्योंकि मैं इस म्यूज़िक को बहुत प्यार करता हूँ, मैं हाँ. बहुत चाहता हूँ। मैंने गंगूबाई बना तो मैंने तो हर रोज़ यही सुनता था, मैं गंगूबाई के गाने मिक्स करते करते भी यही सुनता था। Wow. तो सुकून जा ही नहीं रहा था गाने को, हर गाने में बजा के सुनता था कि अच्छा इस पर ये करेक्ट करूँगा, उस पर वो करेक्ट करूँगा। तो जब एक फाइनल जब सुकून की एल्बम मिक्स हुई, वो खाली 10 दिन पहले ख़त्म किया है मिक्सिंग। फाइनली सारेगा मैंने कहा कि भाई अभी आप दे दो, अभी हमारा हो गया, अभी बहुत 2 साल सबको सुकून मिल जाएगा। 2 साल हमने आज तक कभी किसी एल्बम के लिए रुके नहीं है। Wow. ये क्या कर रहे हैं आप? तो जिस दिन मैंने दिया, मुझे लगता है उस दिन मैंने सुकून की सांस ली। मुझे लगता है मेरे से ज्यादा सारेगा मैंने सुकून की सांस ली। ओके, और अभी आगे आपका क्या प्लान है? आगे कुछ ऐसे बताइए जो आप अभी तक रिवील नहीं किए हो। आगे ऊपर वाला ही जानता है भैया, वो ऊपर वाला कभी रिवील करता नहीं है किसी को। वो अपने आप बन जाती है, हो जाती है। तो वो हीरा मंडी बना रहा हूँ इस वक्त में। Yes. एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के लिए, तो बहुत बड़ा स्केल पे है। पाकीज़ा इनटू 6 एपिसोड, मतलब 6 पाकीज़ा Wow. बना रहे हैं हम 1.5 घंटे की। तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आधा शूट करके आया हूँ, अब यहाँ से जाऊँगा वापस शूट करूँगा। लेकिन वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको बड़े स्केल पे बना रहे, तो बहुत एक्साइटमेंट है। Nice. जिम्मेदारी है, कुछ ऑडियंस को नया पेश करना है। लाहौर की तवायफों के ऊपर है। Yes. इन प्री पार्टीशन की कहानी है, तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो वो होने के बाद देखेंगे क्या। तो आपने ये लाइन जो आपने चूज की है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग वुमेन, क्योंकि आजकल नहीं लेकिन बहुत दिनों से women such as गंगूबाई have never been celebrated. उसको कभी तराजा नहीं गया, उसको कभी कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो आपने वो लाइन क्यों चूज की, वो सेलिब्रेशन करना क्यों चाहा? हर कोई बड़ा डायरेक्टर जो है, बिमल रॉय साहब, राज कपूर साहब, वी शांताराम, महबूब खान, ऑल मेड विमेन स्टोरीज। मदर इंडिया या संगम या सुजाता या बंदिनी, पिक अप ऑल दीज बिग फिल्म मेकर्स, यश चोपड़ा with चांदनी and Yarana. They were all these people were basically people who told stories of women beautifully, and not because they told that I'm making it. I feel stories of women should be told. वापस वही कहानी की डिस्ट्रीब्यूटर कहता है ऑडियंस जाएंगी नहीं, ऑडियंस फीमेल सेंट्रिक ऑडियंस फिल्म में जाएंगी नहीं, उनको तो मेल हीरो चाहिए होता है, वो तभी जाते जाके फिल्म में। ऐसा नो। Padmavat has proved them wrong. Padmavat was the biggest grocer ever in the country, in spite of 3 states being banned, and world over there was lots of issues. The biggest box office that we had, and Gangubai proved it again. So all the same thing again. लोगों पे डाल देते हैं, लोगों ने ये कि नहीं देखते। आप बनाइए अच्छी कहानी, आप डरिए मत कि हीरोइन की पिक्चर में लोग जाएंगे नहीं। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आप अच्छी तरह से बनाइए। हीरोइन की औरत के बिना दुनिया है क्या? तो उसके बगैर उनकी कहानी, और ऐसी औरतें पद्मावती, गंगूबाई। And your own mother has been quite influential in your life. Very influential, very strong women. Without women, this whole world is incomplete. So it is very important to tell these stories of these unsung heroes and say that they are as important as heroes, and forget all that. If a story has a good heroine, please don't stop yourself from making it because you feel it will not run. This whole business of box office, leave it aside. Secondary. And please tell good stories. Please make good songs. Don't worry about people having to dance in the club all the time on the song. A good music is for the soul. Yes. And today my request to people is that do not just watch music. You will have to have a video to it. Then you will go to the YouTube. Listen to music. Yes. Music listening we have stopped. Music is not something that you have to watch. You watch a great artist perform, but you don't need imagery, because then everyone has his own imagery and responds to that music, with be it opera, be it a classical, western classical piece, be it a rag that कोई perform करता है तो आप उसको सुन के imagine करना शुरू करते हो। पर आप उसको एक वीडियो डाल देते हो उसके ऊपर, तो माइंड कंडीशन हो गया, सीमित हो गया। So yeah, but sometimes there are 2 sides to the argument. You have to go move with the times. So you have to make a music video, and you have to do all that. But please tell the audience we need to listen to music. But I think you had the balance perfect in all your films. It's known not just for its music. It's not known just for dance. It's known for story. And I think you've mastered the balance, Sanjay ji, in my humble opinion. In Gangubai is another evidence of that. कि आपने इतनी serious storyline लेके भी you've given it such amazing music. So
from my heart, thank you for giving women that power. Any final thoughts that you want to share with us? Nothing. Thank you. Enjoy life. Be happy and be fearless. Thank you.